Can I know who is Shreya Singh? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Abhay. Good morning, ma'am. Can all of you please switch on your videos for a while so that I can take the screenshot of the attendance? First of all, I would like to tell all of you that yesterday it was Amarjeet's birthday. So please wish him a very belated happy birthday. Thank you, man. Thank you so much, man. आप सबकी ट्रीट अभी पेंडिंग है अमरजीत के साइड से. जब कोरोना खत्म हो जाएगा, hopefully we'll meet and enjoy, right? Sure. अभी और किसका है दिसंबर में? Happy birthday, Amarjeet, in advance. Thank you, भाई. मैं ये पूछ रही थी कि और अभी किसका है दिसंबर में, साल जाने से पहले? बस अमरजीत का ही है. ओके, तो अब जितने भी बर्थडेज हैं वो हम अगले साल में मनाएंगे, है ना? Okay, you can Abhay and Parminder, you can switch off your videos and we'll start in a while. And Anuj has also joined. I will let him inside the class. Okay, so we had left, we were covering and discussing the differences between C, C++ and Java. Please mute yourselves. Somebody has... Anuj, please mute yourselves. Okay. So, we come to the last slide of the comparison that whether Java is better than C++. So, we can say yes, because all the features which create problems in C++ have been eliminated from Java. So on the screen you can see, on the slide you can see many unwanted features that can create problems and errors in the program. They have been removed in Java, so we don't have any hash defined statement, no preprocessor directives there in Java. We don't have any global variables. Goto statement is there, but in a sophisticated manner we use the goto statement in Java. Yes, Amarjeet, any doubts? Okay, you raised the hand, so I thought there's some doubt. Okay. We also don't have any pointers in Java. There is presence of safe structures, or you can say user-defined data types in Java. We don't have multiple inheritance. Operator overloading is not there. Automatic type conversion एक तरीके से होता है. So, but बिल्कुल पूरा proper automatic type conversion भी नहीं है इसमें. And the last and most important point is that there are no fragile data types. Fragile का मतलब loosely typed आपके data type नहीं है. They are all strongly typed. So
अगर आपने कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन किया है, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को वो बिलोंग करता है, तो उसमें स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस एप्लीकेबल रहेंगी रिलेटेड टू द रेंज एंड द साइज और द मेमोरी एलोकेशन दैट वी विल कंसीडर। तो आपका ये सभी फीचर्स आप मेंशन कर सकते हो कि कैसे जावा इज बेटर देन C++। So we can say that Java integrates the power of compiled languages and the flexibility of interpreted languages. Compiled languages में जो power and capabilities हैं उनको आप use करते हो, plus interpreted languages की flexibility को जो हम combine करते हैं, तो we get something that is now known as Java. There are basically two types of Java programs, standalone applications and web applications. Can anybody of amongst you define what is a standalone application? Yes ma'am. स्टैंडअलोन एप्लीकेशन मैम, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसे पर्टिकुलर मशीन पे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, विच इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। जैसे हम इक्लिप्स यूज करते हैं तो हर एक मशीन पे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। बाकी वेब एप्लीकेशन कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो अगर आप एक जावा एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसका सपोज आपने बना दिया, क्रिएट कर दिया, उसकी फंक्शनैलिटी में और वेब एप्लीकेशन या एप्लेट की फंक्शनैलिटी होगी, कुछ डिफरेंस होगी या नहीं? दोनों बोथ आर सेम। आपने जो मुझे बताया है वो आपने क्रिएशन की बात बताई है। मैं एग्जीक्यूशन की बात अगर करूं तो क्या दोनों की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस सेम है या अलग अलग है? यस मैम, वेब एप्लीकेशन हमें रन करने के लिए कोई भी सर्वर यूज करना पड़ता है, जैसे ग्लासेस सर्वर हुआ, टॉमकैट सर्वर हुआ। बाकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए हम अपना सिस्टम से रन कर सकते हैं उसे। ओके, गुड। So as Hemendra has said that the two types of Java programs are one which can be created and executed on one particular machine. तो suppose आप अपने घर पे आपके सिस्टम में Java इंस्टॉल्ड है, आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, वहीं रन किया, आप ही हो जिसने प्रोग्राम बनाया और आप ही हो जो उसका रिजल्ट व्यू कर रहा है, या सपोज आपने अपने फ्रेंड को अपने साथ बिठा रखा है, आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दिया, रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड अ केस ऑफ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन मतलब एक इकलौता सिस्टम, अपने लेवल पे आप उसमें जावा का प्रोग्राम बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, इंटरप्रेट भी वहीं करा रहे हो, उसका आउटपुट देख रहे हो एग्जीक्यूट करके, रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, रिजल्ट देखने के बाद आपने सिस्टम बंद कर दिया, एंड दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। जहां तक जैसे हेमेंद्र ने बोला, इसमें कोई वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप अपनी मशीन को इकलौता जैसे कंसीडर कर रहे हो तो वहीं उसको क्रिएट करके रन करा दो। जब वेब एप्लीकेशंस या जावा प्रोग्राम्स ऑन द वेब की बात होती है, जिनको हम एप्लेट्स भी बोलते हैं, एप्लेट क्यों बोलते हैं? एप्लीकेशन प्लस इंटरनेट, एप्लीकेशन प्रोग्राम प्लस इंटरनेट। तो आपका यही स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो आपने अपने मशीन पे बनाया था, अगर आप उसको नेट से कनेक्ट कर देते हो तो यू कैन से दैट यू हैव क्रिएटेड अ जावा एप्लीकेशन और एन एप्लेट इन जावा। अब इसमें आपका रोल क्या होता है सर्वर का, कि आप ऑब्वियसली उसको किसी वेब पेज से कनेक्ट करोगे, वो वेब पेज कहीं पे आपके पोर्ट होगा नेट पे, नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तो आप जब उसको रन करते हो या कोई और उसको एप्लेट को डाउनलोड करके अपनी मशीन पे रन करता है, इसका मतलब तब वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अब नेट पे अपलोड हो चुका है। इट कैन बी व्यूड, इट कैन बी एक्सेस्ड, इट कैन बी डाउनलोडेड by anyone who is connected to the net, and the other condition is that he or she should have Java software installed on his or her machine. तो स्टैंड अलोन और एप्लीकेशंस और वेब एप्लीकेशंस ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। लॉजिक, हाँ, जो आपका जावा का प्रोग्राम का जो लॉजिक है दैट विल रिमेन द सेम, बट जस्ट जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी मदर ने सपोज आपको सपोज आइसक्रीम बहुत पसंद है,
तो आपने अपनी मदर से बोला कि मुझे अब आपका 2020 खत्म होने जा रहा है, अब नया साल आने वाला है, उसको हम और एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म से मतलब वेलकम करना चाहे, तो आप आइसक्रीम बनाओ। तो आपकी मदर ने आपको आइसक्रीम बनाई और उन्होंने बनाई घर में और आपने उसको खा लिया एंड दैट्स इट। तो इसको हम कंसिडर करेंगे एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की आपके ही घर के एरिया में वो बनाया गया वो चीज और आपने ही उसको एंजॉय किया, अकेले खा लिया, हो गया आपका सेलिब्रेशन न्यू ईयर का, राइट। वेब एप्लीकेशन को आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी मदर ने बनाया है बट आपने सिर्फ अकेले नहीं इसको उसके फ्लेवर को एंजॉय किया, आपने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया अपने घर पे, या आप वो आइसक्रीम लेके अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए। तो मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू शेयर whatever has been created your or cooked by your mother with some friends of yours। तो वो जो आपने वो शेयरिंग वाला काम किया है वो काम वेब एप्लीकेशंस में होता है या एप्लेट्स में होता है। तो आपने अपनी जो भी कोडिंग जो अपने हार्डकोर प्रोग्रामिंग करी है जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इट डज नॉट मैटर, बट अगर आपने उसको नेट से कनेक्ट कर दिया एंड इट्स व्यूड बाय अदर पर्सन्स ऑन द नेट, तो इसका मतलब है कि आप एक वेब एप्लीकेशन या एप्लेट डिजाइन कर रहे हैं। This is the same thing that we have one of the differences कि आप उसको रन कैसे करते हैं। जो आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है वो प्रोग्राम आप कमांड लाइन से रन करते हो, यानी जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट है डॉस प्रॉम्प्ट होता है उसमें आप कंपाइलेशन और रनिंग का काम करते हो और प्रोग्राम में बैकग्राउंड से काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ मैम, यस मैम। You will have to bear थोड़ा कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया था ना उसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसमें। ऐसा लग रहा है कि मैं हथौड़ा मार रहा हूँ। मैं ही मार रही हूँ, सोच लो मैं ही मार रही हूँ हथौड़ा। जावा के हथौड़े पढ़ रहे हैं आप लोग। You will have to bear। I'll try कि कोई और सिस्टम पे नेक्स्ट लेक्चर में कल से और सिस्टम को देखूं, बट ये थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। अब अभी भी आ रही है आवाज? अभी भी आ रही है बेटा? यस मैम। मेरी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को? नहीं मैम, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आपकी भी आ रही है और मैम बाहर से भी आ रही है। वो बैकग्राउंड कॉलेज सारे आप ही बोलिए वो यहाँ पे। Okay, I'll try कि tomorrow onwards I'll take some other system, but ये आवाज इतनी ज्यादा है ना कि आपको आएगी चाहे मैं कहीं और सिस्टम से भी करूँ। I'll try कि इनको बोल देती हूँ मैं। Just hold on for a second। किसी को बुक्स के बारे में कुछ आइडिया है क्या? Okay, so
bear with me. So I tried to call the concerned person and they are not picking the phone. Okay. So एप्लीकेशन जो आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इस प्रोग्राम में आपका जनरली और यूजुअली यू हैव अ मेन मेथड जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और जो एग्जीक्यूशन का कमांड है वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से देते हो, एंड इट्स अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम. एंड इन कंट्रास्ट टू दैट जो आपका एप्लेट होता है, इट्स जावा प्रोग्राम एम्बेडेड इन अ वेब पेज. वेब पेज का मतलब आप एक नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट में इसको एम्बेड करते हो. एक कोड होता है, आपका टैग होता है, इसका एप्लेट टैग यूज होता है. एंड when the page is browsed, what that means that you are accessing the net or somebody else is accessing the net. On that particular web page you can see the applet program. The applet program usually does not have the main method. So in 99% cases applet does not have the main method, but हम ये नहीं outrightly बोल सकते कि applet में main होता ही नहीं है. बट हाँ, मोस्टली इट डज नॉट कंटेन द मेन मेथड. और एप्लेट को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे को एग्जीक्यूट करने के इसमें दो तरीके होते हैं. एक, आप एक जो आपका जावा डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर किट होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लेट व्यूअर के नाम से. एप्लेट व्यूअर पे आप फाइल को रन करते हो. आपको लोगों को पता होगा कि जावा का जो प्रोग्राम है उसका कंपाइलेशन का कमांड जावा सी होता है, और इंटरप्रेटिंग या रनिंग का कमांड सिंपल जावा का एग्जीक्यूट करना होता है. तो उसके लिए एप्लेट व्यूअर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है. एप्लेट व्यूअर कमांड देना होता है और अपनी फाइल का नाम देना सकते हो. बट इस केस पड़ता, जो सेकेंड मेथड है एप्लेट को रन करने का, वो यही होता है कि आप एक वेब पेज में उसको एम्बेड करते हो और उस वेब पेज को आप ब्राउजर पे लोड करते हो. जब ब्राउजर पे आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको वो एप्लेट रन करके रनिंग मोड में दिखाई देता है. तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप एप्लेट की फंक्शनैलिटी को व्यू कर सकते हो, उसके रिजल्ट को देख सकते हो. जहां तक एप्लीकेशन की बात आती है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ. आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा सी कमांड देना होता है कंपाइलेशन के लिए, सिंपल जावा कमांड देना होता है रनिंग के लिए. ये वही चीज है जो मैं आपको बता रही थी कि जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब रन करने की बात होती है तो इंटरप्रेटर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है और एप्लेट को आप जावा एनेबल्ड वेब ब्राउजर के थ्रू व्यू कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द एनवायरनमेंट और द JDK, जिसको हम बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट. इसमें जो आपको पर्पल कलर में दिख रहे हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स. Java C, you must have used Java C and then the name of the file is given. जब आपका कंपाइलेशन का प्रोसेस ओवर हो जाता है तो दो चीजें होती है. इधर यू गेट द एरर्स का मतलब कुछ गड़बड़ है प्रोग्राम में, आप उसको रेक्टिफाई करते हो, सेव करते हो जो भी आपने एरर्स को चेंजेस करी हैं. तो आप है डॉट क्लास टाइप की फाइल को आप जावा इंटरप्रेटर से रन करते हो. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर कि मेरी फाइल का नाम है abc.java, तो जब हम कंपाइल करेंगे तो हम कैसे देंगे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. सपोज मेरी फाइल का नाम है फॉर एग्जाम्पल abc.java. ये मैंने सेव कर दी है. किसी भी एडिटर पे या जिसको आप जैसे नोटपैड कहते हो आप उस पे ये टाइप कर सकते हो abc.java, उसको सेव कर दिया. जब कंपाइलेशन की बात आती है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे. कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जो भी कर्सर वेट कर रहा होगा वहां पे आपको टाइप करना है जावा सी एंड द नेम ऑफ द फाइल. सो abc.java रखा है तो यू विल हैव टू टाइप जावा सी abc.java एंड यू हैव टू प्रेस द एंटर की. अब इसमें दो चीजें होंगी, इधर एरर्स आएंगे या आपका दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट आपको नजर आएगा. अगर एरर्स आते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अगेन गो बैक टू द एडिटर.
make the concerned necessary changes in the program so that the errors are removed. And you have to follow the process again. You have to come back again to the command prompt. You have to give the javac command, and you will have to wait. Either वो errors remove हो गए हैं तो फिर अगर successfully compile हो जाता है तो आपका prompt दोबारा ऐसे ही wait करता रहेगा. अब यहाँ पे अगर आपका compilation के बाद ये prompt आता है, इसका मतलब all syntax or logical errors have been removed from the file. And now your bytecode has been prepared. तो जिस भी फोल्डर में आपने ये abc.java को स्टोर किया है, अगर आप उस फोल्डर को व्यू करोगे तो आपको वहां पे abc.java तो दिखेगी, आपको abc.class फाइल से भी कुछ नजर आएगा. तो ये जो चीज बनी है इसका मतलब आपका ये बाइट कोड बन गया है फॉर abc.java फाइल. अब रनिंग की जहां तक बात आती है तो आप कमांड दोगे जावा एंड यू हैव टू जस्ट राइट द नेम. यू डोंट हैव टू राइट द एक्सटेंशन, क्योंकि एक तरीके से आपकी डॉट क्लास फाइल को ही रन कर रहे होते हो. आपको जावा देना है, लिखना है, एंड यू हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द फाइल विदाउट द एक्सटेंशन. इसके बाद फिर से दो चीजें होंगी. या तो कोई एक्सेप्शन एरर हो सकता है, इट कैन बी एनी लॉजिकल एरर. somebody is again joined. And or what will happen, the program will successfully run and you will be able to view the result of the program. तो जो भी result होगा वो आपको दिख जाएगा, right? तो as you can see, Java C is for compilation, Java is for interpreter. Next we have Java debugger. अगर आपको debug करना है अपने प्रोग्राम को तो JDB कमांड से आप उसको debug कर सकते हो. Applet viewer जो मैंने अभी आपको बताया, it's a tool to run the applets on your machine without embedding it into a web page. अगर आप ये वेब पेज वाली चीज को नहीं करना चाहते हो, अगर आप सिंपली अपने applet का आउटपुट देखना चाहते हो और इतनी सिरदर्दी नहीं आप करना चाहते कि उसको वेब पेज में एम्बेड करेंगे, हम डायरेक्टली उसको अपने सिस्टम पे रन करके देखना चाहते हैं कि एप्लेट ठीक से डिजाइन किया है या नहीं, तो आप एप्लेट व्यूअर कमांड से अपनी फाइल को रन कर सकते हो. सिंपली क्या देना है, एप्लेट व्यूअर एंड देन स्पेस एंड नेम ऑफ द जावा एप्लेट. जो भी आपने जिस भी नाम से सेव किया है डॉट जावा नाम से, उसको आपने वो नाम देना है. तो आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको वो एप्लेट रनिंग मोड में नजर आएगा. नेक्स्ट इज जावा पी कमांड. अगर आप अपने किसी भी फाइल में ये देखना चाहते हो कि उस फाइल के अंदर कितने पब्लिक, कितना प्रोटेक्टेड फील्ड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं क्लासेस के अंदर, तो आप जावा पी कमांड से ये चीज को व्यू कर सकते हो. जावा एच कमांड से आप सी की हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हो. जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि जावा में कोई हेडर फाइल का कंसेप्ट नहीं होता, बट अगर आप सी को इसमें कनेक्ट करना चाहते हो टू अ जावा प्रोग्राम, तो आप जावा एच कमांड से यू कैन क्रिएट अ इक्विवेलेंट हेडर फाइल रिटन इन सी लैंग्वेज. ये वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रही थी. इट्स अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम. टेक्स्ट एडिटर पे आप टाइप करोगे तो आपको मिलेगा आपका जावा सोर्स कोड या जो भी नाम आपने डॉट जावा एक्सटेंशन पे दिया है वो फाइल मिलेगी. उस फाइल पे आप जावा सी कमांड चलाओगे. अगर वो सक्सेसफुली चल जाता है, यू विल गेट द जावा क्लास फाइल और द बाइट कोड. इस पे आप जावा या जावा इंटरप्रेटर को रन करोगे, सो यू विल गेट द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम. अगर आप अपनी किसी हेडर फाइल को कनेक्ट करना चाहते हो बाइट कोड से, तो आप जावा एच कमांड से वो हेडर फाइल को कनेक्ट कर सकते हो. और जावा डिबगर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डिबगिंग आपकी रनिंग मोड में होती है. तो वो जब आप जावा कमांड से रन कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आपको डिबग करना है प्रोग्राम को, तो आप जेडीबी कमांड से उसको रन कर सकते हो. बेसिकली you have to start from the text editor and you will finish at the output of the program. Okay, so this is a simple Java program. हमने एक क्लास लेनी है. क्लास का एक नाम लिया हमने हेलो इंटरनेट.
इसके जैसे हमने डिस्कस किया है, आपका सिंपल से सिंपल जावा प्रोग्राम भी बिना क्लास के नहीं क्रिएट हो सकता। तो आपने सबसे पहले कीवर्ड लेना है क्लास, फिर आपने एक गैप देके क्लास का नाम देना है। नाउ व्हाइल नेमिंग द क्लास यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको कोई एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स का नाम आप नहीं दे सकते क्लास के नाम में, और आपको गैप्स नहीं देनी है, व्हाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप अगर स्पेस देना चाहते हो तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और यू कैन टेक अ डॉलर साइन, और उसके बाद आप कोई भी डिजिट्स, कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अल्फान्यूमेरिक आपका नाम हो सकता है क्लास का, बट द ओनली कंडीशन इज द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट। और अननेसेसरी सिंबल्स नहीं ले सकते आप, मतलब बीच में सेमीकोलन या कॉमा ये सब अलाउड नहीं है। These are not the valid characters that you can go for while naming the class. जो ये rules मैं आपको बता रही हूँ, they are applicable for naming a class, naming a method, naming a variable. They are all same. The rules are the same. So class ली आपने, अब class को, आपका जो class का जो structure है वो curly braces से enclose किया जाता है। और public static void main, this is the मूल मंत्र ऑफ जावा। ये आपको अभी तक होपफुली याद हो गया हो, अगर नहीं याद हुआ तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका यहीं से आपका प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन स्ट्रिंग आर्ग्स। स्ट्रिंग आर्ग्स जब आपका मेन मेथड रन होता है तो इट रिक्वायर्स अ स्ट्रिंग वैल्यू टू रन इटसेल्फ। तो आपने स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा, तो स्ट्रिंग ऐसे ही लेना है। जावा जो है, मैंने आपको बताया नहीं है शायद अभी तक कि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कहाँ पे कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है, और अब हमारी मर्जी नहीं चल सकती। तो जैसे ये स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसका एस कैपिटल है तो ये हमेशा कैपिटल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है, आपने नहीं डिफाइन करी, तो ये इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द लैंग्वेज डेवलपर्स। तो अगर ये कैपिटल एस है तो कैपिटल एस मीन्स कैपिटल एस, सो नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट इज अलाउड। स्ट्रिंग के बाद आप अपनी एक स्ट्रिंग एरे का नाम दोगे, तो आर्ग्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट्स। आप जरूरी नहीं कि आर्ग्स दो, मैक्सिमम बुक्स में आपको आर्ग्स दिखाई देगा, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आर्ग्स लेना है आपको, बट लिखा होता है, ये थोड़ा कन्वेंशन चल रहा है तो इसलिए हम लिखते हैं आर्ग्स। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर आप कुछ और भी लिखोगे तो वो गलत कंसीडर नहीं होगा। आर्ग्स जस्ट आप बता रहे हो कि एक स्ट्रिंग एरे का नाम है आर्ग्स, यू कैन टेक एनी अदर नेम। सिर्फ कीवर्ड नहीं लीजिए आप, कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल अगर प्रोग्राम में है उसका नाम और इसका नाम क्लैश नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप कोई और नाम ले सकते हो। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए, यहाँ पे आप ये सिग्निफाई कर रहे हो कि साइज आपको नहीं पता इसका, तो साइज कैन बी एनीथिंग, जो भी आप यूजर आर्ग्यूमेंट देगा रन टाइम पे कमांड लाइन में, वो सारी वैल्यूज इस आर्ग्स एरे में आ जाएंगी अगर आप देते हो। अगर आप एग्जीक्यूशन करते वक्त कमांड लाइन पे कोई प्रॉम्प्ट पे आप आर्ग्यूमेंट देते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम दे सकते हैं, तो उस मोमेंट पे आर्ग्स एरे में वो सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, इनपुट हो जाएंगी इस तरीके से। तो आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स लिखा, ये आपने मेन मेथड डिफाइन कर रहे हो आप, और इसके अंदर हमने सिंपल एक लाइन लिखी है, system.out.println hello internet enclosed in double quotes, and this whole line has been terminated with a semicolon. So if you carefully see, यहाँ पे आपका C का सिंटेक्स यूज हो रहा है। आपका C के जो फंक्शंस होते हैं उनके पैरामीटर्स राउंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, और में जो फंक्शन होता है वो कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज होता है, तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं। C और C++ दोनों में आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से, तो वो यूज किया गया है। ये सिंपल एक लाइन लिखी आपने और आपने अपनी क्लास को बंद कर दिया। तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन नाउ? मैम इसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा पहले। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको सेव करना होगा मैम। एग्जैक्टली, इसको सेव करना होगा, क्योंकि बिना सेव करे आप कंपाइल नहीं कर सकते। तो आपको जब सेव करना होगा तो क्या प्रोसेस होता है सेव करने का?
किसको पता है, याद है? मैम डॉट जावा क्या फाइल नेम डॉट जावा। क्या फाइल नेम होगा इसका? कोई भी फाइल नेम लिख सकते हैं हम। नहीं मैम, जो इसका मैम क्लास नेम है वही। जो क्लास का नाम है। तो इस क्लास का नाम है क्लास हेलो। नेम डॉट जावा। ओके, तो यहाँ पे H कैपिटल है, I कैपिटल है, सो यू हैव टू टेक द सेम नेम इन द सेम मैनर इन विच यू हैव रिटन इन द प्रोग्राम। तो इस फाइल का नाम होगा hello internet डॉट जावा। द नेक्स्ट स्टेप विल बी कंपाइलेशन ऑफ द कमांड। तो इन्होंने यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये hello डॉट जावा नहीं है, यहाँ पे hello internet डॉट जावा होगा। नीचे आपको दिख रहा है एग्जीक्यूशन में उन्होंने इसी तरह से लिखा है। तो जब आप जावा से hello internet डॉट जावा करोगे तो इट विल क्रिएट अ फाइल hello internet डॉट क्लास, जो आपकी बाइट कोड होगा जिसके अंदर जब हम रन करते हैं या जब इंटरप्रेटर चलता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इंटरप्रेटर बाइट कोड पे चलता है। तो आप लिखोगे जावा एंड यू विल राइट हेलो इंटरनेट। जैसे ये आपका एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली तो यू विल गेट द आउटपुट जो भी आपने मैसेज लिखा था। तो बेसिकली ये जो आपने system.out.println है, दिस इज द कमांड इन जावा टू प्रिंट सम यूजर डिफाइंड मैसेज। आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और println system.out.println इज द बेसिक कमांड। तो जो काम printf करता है सी में, जो काम सी आउट करता है C++ में, वही काम system.out.println करता है जावा में, राइट? यस मैम। Okay. There is another alternative command for printing. It's system.out.print. उसमें ln नहीं होता, तो I suppose सबको पता होगा कि ln is for the line, for the next line. तो अगर आपको मल्टीपल मैसेजेस एक ही लाइन में चाहिए तो आप बहुत सारे प्रिंट कमांड्स दे सकते हो, उसमें ln लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको गैप्स चाहिए नेक्स्ट लाइन तो यू हैव टू टेक द प्रिंट ln। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो फॉर प्रिंटिंग सम मैसेज। ये आपका एप्लेट है। अगर जो पीछे हमने कोड लिया है, अगर हम उसको वेब पेज से एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको दिख रहा है HTML टैग होता है टू स्टार्ट अ वेब पेज, /HTML से खत्म होता है, टाइटल टैग होता है, हेड टैग होता है। उसके बाद एप्लेट टैग से आप अपनी किसी भी जावा एप्लेट को किसी वेब पेज से कनेक्ट कर सकते हो या एम्बेड कर सकते हो। तो लिखने का तरीका क्या होता है, एप्लेट लिखते हैं, कोड लिखते हैं, कोड इज द एट्रीब्यूट ऑफ एप्लेट टैग, तो कोड लिखना है इज इक्वल टू आप डॉट क्लास फाइल जो भी है आपने डॉट जावा फाइल बनाई है उसको आपने कंपाइल कर लिया होगा, उसका नाम आपने डॉट क्लास फाइल का नाम देना है। विड्थ और हाइट मेंशन करनी है कि आपकी जो एप्लेट की विंडो होगी जब वेब पेज पे वो लॉन्च होगी तो उसकी अपनी विड्थ और हाइट आप क्या रखना चाहते हो। These three are the necessary parameters that you have to give while you are mentioning the applet tag. अगर आप applet tag यूज कर रहे हो तो ये तीनों चीजें आपको बतानी ही बतानी है। कोड बताना है कि क्या चीज, कौन सा जावा प्रोग्राम दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एप्लेट ले लिया बट उसको पता ही नहीं कि रन क्या होना है, क्योंकि वो आपका जावा से कनेक्ट हो रहा है, आपका वेब पेज जावा प्रोग्राम से कनेक्ट हो रहा है बेसिकली, तो आपने उसका कोड का पाथ बताना है कि वो कोड कहाँ पे है। विड्थ और हाइट बतानी है विंडो की। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक को स्किप कर जाते हो तो जब भी आप पेज को लोड करोगे ब्राउजर पे तो आपको एप्लेट नजर नहीं आएगा। दीज थ्री आर नेसेसरी पैरामीटर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं पैरामीटर्स एप्लेट टैग के, बट वो मैंडेटरी नहीं होते। These three are mandatory. You have to give them if you want that your applet should be visible while you load the web page on the browser. इसके बाद आप /applet से उस एप्लेट को बंद कर देते हो। इन्होंने बॉडी टैग नहीं लिया इस एग्जांपल में, बट आप बॉडी टैग भी ले सकते हो। तो यू कैन कंबाइन बोथ अ वेब पेज एंड अ जावा प्रोग्राम एंड यू कैन लॉन्च इट ऑन द नेट। You have various Java resources, various sites where you can access tutorials and the text related to functionality of Java. तो ये कुछ साइट्स के लिंक्स हैं, ये मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगी आज, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव स्टिल नॉट सेंड मी द मेल आईडीज। ओम आपका नहीं आया है, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं आया, शोभा नाम से एक स्टूडेंट है उसका नहीं आया। तो प्लीज सेंड मी द
Om, please send me your mail ID, right? मैम Because आपकी वजह हमारी से भी नहीं आई मैम, हमारी ईमेल भी नहीं आई रीना की। बेटा मैंने आपको मैसेज कर दिया क्या व्हाट्सएप पे? यस मैम, यस मैम। अगर मैंने अपडेट कर दिया है तो अब आ जाएगी, ठीक है? ओके मैम। Okay. These are the textbooks that you can go through. इसमें से जो आपका पहला टेक्स्ट बुक है जावा कंप्लीट रेफरेंस, ये आपको जब आपका सेट प्रिपेयर हो जाएगा वो मिलेगा। एंड इफ यू केयरफुली सी, इसमें जो 2 ऑथर्स हैं, इसमें से एक ऑथर जो पैट्रिक नॉर्टन है, ही वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द जावा टीम। ये बुक अगर किसी को मिल जाती है तो दी बेस्ट है, बिकॉज अब ये पुराना एडिशन है। अब नए एडिशन में सिर्फ हर्बर्ट शील्ड इज द ऑथर, द अदर पर्सन इज नॉट देयर। बट हाँ, अगर किसी को ये बुक मिलती है तो ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब ये हमने अपने टाइम पे पढ़ी थी, आप लोगों को अभी तो नहीं मिलेगी, इसके एडवांस्ड एडिशन मिल जाएगा आपको। एंड देयर आर अदर बुक्स ऑल्सो एज यू कैन सी। तो लाइब्रेरी से आपको पहला कंप्लीट रेफरेंस जावा मिलेगा। एंड बाकी अगर आपको कहीं से ई बुक मिल जाती है तो यू कैन गो थ्रू दैट। As far as your syllabus is concerned, complete reference Java is sufficient enough जिससे आप attempt कर सकते हो एग्जाम में। So this is a summary of our PPT. You can go through it. And the last line is Java is ubiquitous. Ubiquitous means it's present everywhere because of its excellent features and functionality. You can see Java almost everywhere around yourself. So I'll be stopping the screen share. I had planned कि आपको एक ऑनलाइन प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करके दिखाऊं, बट आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। मीटिंग ओवर होने वाली है। इफ यू विश, आप लोग क्या बोलते हो, कल कर ले? ओके मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कल will tomorrow we'll run the program on the compiler. If you have any doubts, you can ask there only, right? ओके Yes, ओके ma'am. मैम। Okay, beta. Take care. See you tomorrow. We'll continue in tomorrow's class. Thank you. Okay, ma'am. Okay. ठीक है, Okay, thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you. Welcome. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Welcome. You can leave. मैम अटेंडेंस लगा लेना प्लीज। मैंने लगा दी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। मैम मेरा हो गया अजय कुमार। थैंक यू मैम। मैं सबका हो गया, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, सबका हो गया, डोंट वरी। ओके मैम। ओके। Okay.